Okay, so guys, we are doing this question. Now, what I have done, first of all, okay, this is for ये subtraction वाले questions करने हैं. I mean, when difference formulae are there, sin A minus B equal to sin A cos B minus cos A, sin A cos A sin B. Okay, so fifth question onwards I have to do this. The reason is, अब इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, PON angle draw किया, which is angle A here, which is the angle A. Angle A complete angle. Then from ये anti-clockwise, clockwise, I have taken angle B. POQ is angle B. Okay. Therefore, difference of these two, angle A minus angle B, is this angle. QOX angle is A minus. ठीक है, A माइनस बी एंगल हो जाता है. इसके बाद आपने ये राइट ट्राइंगल QON दिया जिसमें A माइनस बी इंक्लूड होता है. ओके, व्हाट आई हैव डन नेक्स्ट, इसके बाद हमने सबसे पहले OP पर QR ड्रॉ किया. तो QR इज परपेंडिकुलर टू OP. ओके, OP पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. फ्रॉम R, we have dropped RS perpendicular to PN. Okay, and this QT is also perpendicular. No need of that because it is not denominated by us. QT is perpendicular to RN. So now in these two right triangles, let me take in a right angled triangle PRS and triangle. This is also right triangle. This one RON. You can take RON. Why is this angle A equal to this angle A? Let me write here. Angle. First I'm taking PRS triangle. इसके अंदर angle PRS is equal to this angle PRS is equal to angle RON equal to angle A. Region corresponding angles. ये दोनों ही corresponding angles हैं. Corresponding क्या होते हैं? corresponding क्या होते हैं? जब दो parallel lines एक लाइन को कट करती है, any line which is intersecting two parallel lines, the angles made upon those parallel lines are corresponding angles. Okay, so these two lines, अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये जो ऊपर एंगल बनते हैं, let me take this angle, okay, or this angle and this angle. This is 1 equal to 2, 3 equal to 4. Corresponding angles. They are only corresponding angles. Even sometimes what is there that okay, these are corresponding angles. Parallel lines के ऊपर intersect line कट दोनों को जो ऊपर एंगल बनते हैं वो corresponding angles. Therefore ये angle A इस angle A के बराबर हो गया. दोनों right triangle ये similar triangles होंगे क्योंकि दोनों then this angle 90 minus 1 हुआ angle RPS. ये angle A angle this whole sum of these two 90 degree. अगर ये A है तो ये 90 minus ये हुआ क्योंकि ये 90 डिग्री है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. सिमिलरली अगर ये A है कंप्लीट 90 था तो ये 90 minus A हुआ 90 minus A. इसका मतलब इस राइट ट्राइंगल में SRQ में ये एंगल A रीजन दिस प्लस दिस 90 डिग्री क्योंकि ये 90 डिग्री है कंप्लीट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये एंगल A बनाते हुए लाइन ड्रॉ किया, फिर एंगल A एंगल B मेक किया, फिर एक लाइन ड्रॉ किया जो एंगल B बनाती है इन दोनों के बीच में क्लॉकवाइज. दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा, उसके बाद दोनों का डिफरेंस A माइनस B, ये एंगल हुआ, ये राइट ट्राइंगल OQN where QNO is perpendicular on the x-axis. ओके, सो P एन आपने ज्वाइन किया था O A एंगल बनाने के बाद.
इसके बाद में Q से OP पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, R से BN के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, RS ड्रॉप किया, Q से RN पर QT परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाती है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज सम ऑफ द स्टूडेंट्स बोला कि सर हिंदी बताइए थोड़ा सा सो दैट हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, क्योंकि कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो अभी आई मीन फ्रॉम हिंदी मीडियम दे हैव कम टू द इंग्लिश मीडियम, दे आर नॉट अंडरस्टैंड दिस, फॉर देम आई हैव टेकन दिस इन हिंदी मीडियम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर हैविंग टू स्पीक इंग्लिश बोथ the management students and engineering students, they require totally English medium. So that reason is we are having to speak English. Okay, so the reason is I'll take English words and Hindi words to make sure that ultimately the student can understand. My main objective is just to describe the topic so that one can understand the topic. Right? मेरा reason यही है। तो स्टूडेंट को समझाने के लिए मैंने हिंदी में लिया है, ये हिंदी वर्जन। अगर कोई समस्या आती है तो आप बताइए, और प्लीज कोई भी प्रॉब्लम आती है तो समझिए, फिर समझाइए मुझे। इस तरह से आई कुड इम्प्रूव दिस, कमेंट अपॉन द टॉपिक सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन द सब्जेक्ट। नाउ कम तो दिस इज द राइट ट्रायंगल। अब हमें प्रूव करना है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। But in case of cos, there is plus sign, then minus sign in result. If it is minus sign, then plus sign in result. But in case of sine, same sign, plus, plus, minus, minus. Okay? ये आपको याद रखना है। In case of tan A minus B, tan A minus tan B, in the numerator they have the same sign, whatever this sign is there. But in denominator, sign is different. This is to just to remember. इसको याद करने के लिए हम ऐसे समझाते थे। वे ये माइनस साइन ये माइनस है, बट इन डिनोमिनेटर में प्लस का साइन, साइन में हमेशा सेम रहता है, ए माइनस माइनस साइन, लेकिन कॉस में डिफरेंट होता है, माइनस ये प्लस। इस केस में कॉस ए प्लस बी देन दिस माइनस साइन, तो ये डिफरेंट है। तो समझने के लिए आप इसको याद रखिए सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट फॉर ऑलवेज फॉरएवर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, तब हम आते हैं क्योंकि आपको ए माइनस बी रीड करना है, क्वेश्चन एंगल ए माइनस बी को लेना है। इसका मतलब एंगल ए माइनस बी कहाँ बनना है, इस वाले राइट ट्रायंगल ओ क्यू एन, और ओ एन क्यू और क्यू ओ एन वट एवर प्रोनाउंस, राइट ट्रायंगल इज एट एन पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हुआ ओ क्यू, ये परपेंडिकुलर है एंगल ए माइनस बी के सामने, ये बेस है ओ एन इज बेस, क्यू एन परपेंडिकुलर है, ओ क्यू हाइपोटेन्यूज है। ठीक, इस राइट ट्रायंगल में हम डील कर लेते हैं, दैट इज इट। नाउ द क्वेश्चन, तो साइन ए माइनस बी दैट वी टेक सॉल्यूशन। अच्छा, साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, क्या वैल्यू है in right triangle? Let me take in a right angled triangle QON, we have sin A minus B is equal to perpendicular upon hypotenuse. This is QN upon OQ. Why? Sin theta हमने आपको बताया CBP upon HHB. What is that? क्या इसको हमने समझाया था याद रखने के लिए? दिस इज साइन थीटा, दिस कॉस थीटा एंड P अपॉन B tan थीटा होता है। इस केस में सबसे पहले इनको याद रखने के लिए हमने आपको पहले ट्रिक बताई है कि दिस इज पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सिंपल याद रखना है इन हिंदी। ओके, और जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और इन इंग्लिश यू कैन रिमेंबर दैट इन एनी पाकिस्तान इज नो, पाकिस्तान भूखा प्यासा मीन्स हंग्री एंड थर्स्टी, हरा भरा, हिंदुस्तान इज ग्रीन एंड फुल, भरा, ओके, हरा भरा हिंदुस्तान हरा,
hara means green, and B means here hara means full of everything. Okay, so Hindustan hara, Pakistan bhuka pyasa, bhuka means hungry, P means pyasa, pyasa means thirsty of water. They are okay. Now control. This formula was given by a student from Delhi, because I was not knowing this trick, but they were telling me that sir, this is some patriotic, remembering point. Okay, trick. इसलिए याद रखना है. Okay, that is up to them. I'm not averse to anything. Any student can just understand this. Just remember that they can understand in any way. उनको अपने आप याद रखना है. Okay, so एक sin theta, perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल जिसको कंसीडर करते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज. बाकी बचा बेस, ON इज द बेस, QN परपेंडिकुलर है, OQ हाइपोटेन्यूज. इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल QON, ओके, एंगल A-B इसी में आता है. ये एक्यूट एंगल है. इसका साइन A-B, QN परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज OQ. ओके, अब QN को आप लिखते हैं SN माइनस QS, SN माइनस QS अपॉन OQ. वाई? अब SN क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई साइड नहीं है. SN is not any side of any right angle, so we are just equal this SN to RM. RM is right angle triangle की साइड. इसकी जगह SN की जगह हम RM रख देते हैं. therefore RM minus QS is okay, but QS तो साइड है इस triangle, right angle triangle divided by OQ. OQ is also side. दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं. जैसे RM upon OQ minus QS upon OQ. Okay, here since QS SN equal to RM SN equal to RM. क्या है ये? क्योंकि साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स, विपरीत साइड है इसकी, साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल की ये अपोजिट साइड्स हैं ऑफ ए रेक्टेंगल. सेम होती है अपोजिट साइड से इक्वल इन रेक्टेंगल इन स्क्वायर आल्सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, सो बट इन दिस केस दिस इज फॉर्मिंग ए रेक्टेंगल. एक लेंथी साइड है, छोटी वाली साइड है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ. ओके, सो ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है. ये SN की जगह हमने RM लिख दिया, SN की जगह RM पुट किया है. ओके, rectangle, they are forming a rectangle. Now come to point. Further, now RM is side of what? This triangle. We divided by OR. We divided RM by OR into OR से multiply किया, divide किया, upon OQ as it is, minus here QS. Now QS is side of QS, side of RSQ, so this is RQ, if we divide by RQ into RQ, multiply भी कर देते हैं RQ से अपॉन OQ. ये आपको ऐड करना होता है, अपनी तरफ से सोचना है. वाई दिस वी हैव डन? क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में सोचना है, कौन सी साइड से डिवाइड करना है, किसी मल्टीप्लाई करना है. ये देखिए OR, क्योंकि OQ और दिस RM is the side of this right triangle ROM. तो आप इसको OR से डिवाइड करेंगे, हाइपोटेन्यूज क्योंकि राइट एंगल की साइड सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है. हाइपोटेन्यूज कब आता है? साइन और कोस में आता है नीचे, क्योंकि साइन कोस में हमें रिजल्ट करना है, इसलिए आपको इसको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना है. पूछना है कि कौन सा हाइपोटेन्यूज बनाता है? OR नीचे, OR से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, बट OR यहाँ पर इस वाले राइट ट्रायंगल में भी, क्योंकि यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस वन QRO, इसमें OR बेस बनाता है, क्योंकि ये राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, OQ is the hypotenuse,
एंड एंगल बी के सामने ये आर क्यू परपेंडिकुलर हो जाती है और ये बेस हो जाता है ओवर। ओवर बेस भी है इस राइट ट्रायंगल का, इसका ओ आर क्यू का और ओ क्यू आर का। ओ क्यू आर में ये बेस बनता है और ट्रायंगल आर ओ एम में ये हाइपोटेन्यूज। ओके, तो दिस इज सॉल्विंग और आई मीन डूइंग द पर्पज ऑफ टू थिंग्स, टू साइड्स। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेट मी पुट द वैल्यूज। अब आप देखें कि आर एम अपॉन ओ आर, व्हाट इज आर एम अपॉन ओ आर? आर एम ये एंगल ए के सामने की साइड है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ आर। ओ आर इंक्रीज, दिस इज साइन ए एंगल, साइन ए, कैपिटल A, because in right triangle ROM. Okay, let me write it here. यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, in right angle triangle, right angle triangle, which one? ROM. Sin A, this angle A, complete angle, is equal to RM upon OR. This is RM upon OR, sin A. Then OR upon OQ, OR upon OQ. Now this is the base. In the right angle triangle, okay, ORQ. Now OR. Cos, this is B angle. Cos B is equal to base is this, तो राइट एंगल सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूज और ये B के सामने ये परपेंडिकुलर बची साइड बेस, ये बेस अपॉन दैट मीन्स ओ आर अपॉन OQ. So O R upon OQ is cos B. Let me write it here. It is cos B into cos B minus sin QS upon RQ. QS upon RQ. Again, A angle E. This is the A angle. Side opposite to this is perpendicular, but this is base. Base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse is cos. This is cos A angle. Since in a right angle triangle RSQ or QRS, we have SQ, which is base upon RQ is equal to cos A. ये cos A होता है SQ upon or QS upon SQ means QS here. First I have taken Q, so let me take QS. Is QS upon RQ. This is cos A. Cos A. What is RQ upon OQ? Now RQ upon OQ. RQ is now perpendicular in angle B. In this right triangle in which B is the angle. So this is now RQ. RQ is perpendicular. OQ is hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse is or sine of B. Sine of B हो जाता है easy, but we take the same way in a right angle triangle. Okay, which one? OQR. OQR. और we have हमारे पास में ये है कि RQ अपॉन OQ. RQ upon OQ. This I am dealing with. RQ परपेंडिकुलर हो और ये हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज और एंगल जिसको कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर। RQ upon OQ is साइन ऑफ B एंगल, क्योंकि ये B एंगल ये फॉर्मूला आ जाता है सेम। साइन ए कॉस B माइनस कॉस ए साइन B इस साइन A माइनस B की वैल्यू हुई। दिस इज राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। हैंड्स प्रूफ ऐसे ले सकते हैं हैंड्स, और जस्ट से राइट हैंड साइड आ जाती है, दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5,
difference formula for sin A minus B difference. Sorry, this I have done. Let me again draw that. That is still required. That is still required. Now let me add question number 6. This is cos A minus B equal to cos A cos B plus sin A sin B plus sin A sin B. Now let me again draw this because this is required, still required. We draw perpendicular from this. I've taken this as N, and from this point, this is M point we are taking. From R we draw perpendicular to this, and this is a Q point here. Q point I put this. Okay, this is your angle B. Okay, this is angle B. Let me again perpendicular. This is A angle. Okay, and this is perpendicular drop. I took this as S. Okay, this is perpendicular drop. From this also we draw perpendicular to OP. Actually, that's axis. Okay, now this is complete angle by 90 degrees, so this is now 90 minus A, and this angle is A. Why A? Because this is A angle corresponding angle to this board. Okay, let me take this is A angle complete. This is B angle, and this angle remaining is A minus B. Okay, and from this I draw perpendicular QT also. So this is the whole figure we have dropped. Here again I will drawn. Wrongly I remove this part. Let me again frame this. Okay, तो क्वेश्चन नंबर ये. अब इसकी जगह क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. अब इसी राइट ट्रायंगल में बच्चों QON में ये इसी में A माइनस बी आता है. A माइनस बी एंगल कंप्लीट A में से B एंगल माइनस किया तो ये लास्ट बचता है A माइनस बी. A माइनस बी के टर्म्स में एंगल में इस एंगल को लेते हुए cos A माइनस बी tan A माइनस बी और बचता है वो फ्रेम का. लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 6 on talking about solution. Okay, so right triangle, in a right triangle, right angle triangle QON, we have, हमारे पास में क्या होता है इस राइट ट्रायंगल में हम देख रहे हैं क्या आता है cos A माइनस बी. साइड के टर्म्स में लिखूँ अगर तो कैसे लिखेंगे आप, कैसे लिखना होता है साइड के टर्म्स में QON. हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस वाले राइट ट्रायंगल में बेस कहाँ पर है? ON इज द बेस, क्योंकि एंगल A माइनस बी के सामने की साइड ये QN परपेंडिकुलर हुआ. राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज OQ हाइपोटेन्यूज हुआ. रिमेनिंग साइड ON बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ON अपॉन OQ. दिस इज ON अपॉन OQ. ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब जरा देखें OM की वैल्यू क्या है. बेस को आपने लिखा OM प्लस MN, OM प्लस MN, सम ऑफ दीज टू साइड्स OM MN OM के बराबर हो तो ये डिवाइड बाई O. फर्दर MN इज नॉट साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, तो MN को आप RS के इक्वल कर देते. पुट OM प्लस MN इज RS divided by OQ. रीजन लिख दीजिए सिंस MN बराबर है RS की साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ
रेक्टेंगल, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, अपोजिट साइड्स ऑफ ये रेक्टेंगल। चलिए इसके बाद डिवाइड कर देते हैं। ओ एम दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं ओ क्यू से। ओ एम अपॉन ओ क्यू प्लस आर एस अपॉन ओ क्यू। नाउ ओ एम कहाँ पर है? ओ एम दिस इज ओ एम। ओ एम को अगर आप ओ आर से डिवाइड करें, डिवाइड कर देते हैं। ओ आर से आपने डिवाइड किया, ओ आर से मल्टीप्लाई भी की। अभी ओ क्यू नीचे था, ओ क्यू आपने ऊपर रख दिया, प्लस साइन आर एस इसकी साइड है, आर एस साइड इस वाले राइट ट्रायंगल की आर क्यू से डिवाइड की थी, इसको आर क्यू से ही डिवाइड कर देते जो हमने साइन में भी किया था। यहाँ भी आर क्यू से डिवाइड किया, आर क्यू से मल्टीप्लाई किया, और वो क्यू पहले से ही है। तो क्यू इज ये पहले से आर एस अपॉन आर क्यू अपॉन राइट। अब इसकी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए ओ एम अपॉन ओ आर, ओ एम अपॉन ओ आर, इस राइट ट्रायंगल में इसमें एंगल ए है, कंप्लीट एंगल इज ए। एंगल ए के टर्म्स में मतलब वैल्यू ओ एम बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो राइट एंगल के सामने की साइड ओ आर, हाइपोटेनस ओ आर, इस राइट ट्रायंगल में ये आ गया। ठीक, ओके राइट हियर वैल्यू पुट करनी है सिर्फ इनकी, ये चार वैल्यू थी। लेट मी डिस्क्राइब एवरीथिंग। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर एम, ओ एम अपॉन ओ आर इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू cos A complete angle. This whole angle is A, cos A. This value is OM upon OR, cos A. Now OR upon OQ, where is OR? OR upon OQ in right angle is. और इस राइट एंगल की बात करते हैं सेकंड वाला, जिसमें OR OQ है। Now in right angle triangle ORQ or OQR, we have इसमें OR upon OQ देखिए आप क्या है, OR upon OQ। In this case because ये right angle triangle है, ये परपेंडिकुलर किया था आपने, ये this angle is 90 degree, this 90 degree complete angle, this 90 degree, 90 side opposite to 90 degree, ये हाइपोटेनस हुआ, वो आर बेस हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, ये बी है, कॉस बी। देखिए आप एंगल कॉस बी, ये कॉस बी आ जाता है, इसलिए इसकी जगह ओ आर अपॉन ओ क्यू, ओ आर अपॉन ओ क्यू इज कॉस बी प्लस साइन, और आते हैं आर एस अपॉन आर क्यू। व्हाट इज दैट? आर एस upon R2 in right angle triangle RSQ or RQS we have what we have RS. what is RS? एंगल A, ये एंगल A है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस 90, ये एंगल है, this is 90 angle, RSQ angle is 90 degree, therefore RS upon RQ is equal to sin A, sorry, this is sin A, this is angle A in right angle SRQ or RQS, we have RS upon RQ is perpendicular upon hypotenuse equal to sin A, this is sin A here, RS upon RQ, now RQ upon OQ, RQ upon OQ. Now in right angle this, what is that? Let me again put it here. In a right angle triangle OQR, क्या है आपके पास इसमें? We have in this right triangle that this is RQ upon RQ is
एंगल अपोजिट टू एंगल बी, द साइड अपोजिट टू एंगल बी, दिस इज परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन OQ, RQ upon OQ, this is RQ upon OQ, perpendicular upon hypotenuse equal to sin B angle, sin B, this is sin B, RQ upon OQ sin B. ये आपको cos के लिए फॉर्मूला जाता है, cos A minus B इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B, hence right hand side, ये right hand side आ गया, this is right hand side and आपको समझना आ गया होगा। तो रीजन इज ये सब बेसिक आना चाहिए। A माइनस बी एंगल की बात करते हैं, ठीक है, इसमें आप tan की बात करते हैं, tan A माइनस बी डिफरेंस फॉर्मूला फॉर tan। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वन, अब आता है डिफरेंस फॉर्मूला किसके लिए, tan A माइनस बी। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है tan A minus B is equal to tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B। ये सॉल्यूशन अगेन उसी राइट ट्रायंगल में जिसमें A माइनस बी एंगल बनता है, उसको लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल OQN, in right angle triangle, which one, OQN, we have tan A minus B angle, A minus B सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस और ये हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, बट वी हैव टू टेक QN अपॉन ON, base upon, sorry, perpendicular upon this, P upon B, P is this perpendicular, this QN upon ON। अब QN को आप इस QN वाली बात को इसके टर्म में लिखिए, what is that, फिर SN minus QS और S QN की वैल्यू इस QN is SN minus QS और SQ, SN minus QS, OM is OM को आप OM plus MN, this is OM plus MN, बट क्या साइड से देखिए QN की वैल्यू, सॉरी